Hello students, welcome. I'm Ritesh and now I'm going to tell you about empirical formula of molecular mass, that is next part of your chapter, some basic concept of chemistry, right? Uh, Empirical formula for molecular masses. What is the empirical formula? What do you mean by empirical formula? And what is molecular mass? We already know. Empirical formula represents the simplest whole number ratio of various atoms present in a compound. Suppose that we have a compound like C6H12O6 glucose fructose. What is the quantity? 6. It is in 6 atoms are here, 12 atoms are here, and 6 atoms are here. So that is our various atoms present in compound. So empirical formula represents the simplest whole number. Molecular formula, what is molecular formula? Molecular formula shows the exact number of different type of atoms present in molecule of a compound. समझते हैं इसे. Suppose that it is our molecular formula. Molecular formula is a formula of compound. ये कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये बताता है कि इस कंपाउंड के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल कितनी क्वांटिटी में है, यानी कितने, लाइक C6H12O6 में कार्बन 6 है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 6, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 12 एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 6. तो ये पार्ट है अपना मेरा, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है. इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पेरिकल फार्मूला हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम देखेंगे. तो फॉर कैलकुलेटिंग एम्पेरिकल फार्मूला, व्हाट टू डू, वी हैव टू डिवाइड 6, 12, 6 with a number, like it's just like LCM. तो क्या करना है आप लोगों को, ये 6, 12 और 6 है, इनका एक एलसीएम लेना है, कैसे कॉमन डिजिट से लेना है जो कि सबको डिवाइड कर दे. तो ये डिवाइड हो सकता है 1 से. अगर मैं 1 से डिवाइड करता हूं तो यहाँ 1, 6, 12 और 6 ही रहेगा. 2 से भी डिवाइड हो सकता है, तो मिनिमम ये कहाँ तक जा सकता है, 6 तक. जैसे 6, 12, 6 है, मैंने क्या करा, 6 से डिवाइड कर दिया तीनों कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को 6 से डिवाइड कर दिया. तो व्हाट वी गेट, CH2O, राइट. यहां 6 से डिवाइड किया 1 आया, यहां 6 से डिवाइड किया 2 आया, यहां 6 से डिवाइड किया, राइट. तो जिस डिजिट से मैंने डिवाइड करा है दैट इज कॉल्ड कॉमन फैक्टर. तो व्हाट इज कॉमन फैक्टर? Common factor is indicated by n. Here n is equal to 6. For H2O2 is hydrogen peroxide. Its molecular formula is H2O2, which indicates number of molecule is in compound. Here number of molecule is 1, number of molecule of oxygen is 1, or you can say number of hydrogen atom is 2, number of oxygen atom is 2. Now what to do? It will be divided by 2. Then formula became HO and n factor is equal to 2. Right? For benzene C6H6, एक सिंपलेस्ट नंबर जिससे हम डिवाइड करें और उससे ज्यादा फर्दर डिवाइड ना हो पाए, तो ये हो गया मेरा C and H, where n is equal to 6, right? For CH3COOH, it's acetic acid. Here number of in case of CH3COOH, number of carbon is 2, number of hydrogen is 4, and number of oxygen is 2. So divide it with 2. Now formula became CH2O, n is equal to 2, right? For NH3,
NH3 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो भी नहीं होगा, 3 से डिवाइड करें तो यहाँ 1/3 आ जाएगा, जो कि फ्रैक्शन में है, बट हमें क्या चाहिए, एक सिंपल होल नंबर चाहिए। तो फॉर NH3 इट बिकेम NH3 वेयर n इज इक्वल टू 1। तो ये तरीका है हम किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, और यू कैन कैलकुलेट इंपेरिकल फार्मूला फ्रॉम मॉलिक्यूलर फार्मूला आल्सो। हाउ टू कैलकुलेट molecular formula is equal to n into empirical formula. Suppose that we have n for glucose, value of n is equal to 2 into empirical formula is CH2O2. CH2O. Now it is C2H4O2. C2H4O2. No, sorry. Here n is equal to 6. It's C6H12O6. Right? In the same way, for HO, n is equal to 2. HO, where n is equal to 2. Now our what will be your molecular formula? Molecular formula is equal to n into empirical formula. Value of n is 2. Empirical formula is HO. Now it is S2O2. Hydrogen peroxide, that is our molecular formula. तो ये तरीका है empirical formula molecular formula कैलकुलेट करने का। हो क्या गया है? मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, किसी भी कंपाउंड के अंदर कितने अमाउंट में कोई मॉलिक्यूल मिला है ताकि वो कंपाउंड बना है, ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मैंने कहा कि बेंजीन के लिए C6H6, ये इंडिकेट करता है कि बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, बट इट्स एम्पिरिकल फार्मूला क्या शो करेगा, वो शो करेगा मिनिमम C और H के बीच का क्या रेशियो हो सकता है, दैट इज C&H। अगर मैं इसे डिवाइड कर दिया, सपोज दैट मैंने इसे 3 से डिवाइड किया, इसे भी 3 से डिवाइड किया, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनता, यहाँ n इक्वल टू अगर 3 बन रहा है तो फॉर्मूला बनता C2H2, राइट। तो अगेन हम यहाँ 2 से डिवाइड कर सकते थे, 2 से फिर करेंगे, तब जाके ये बनेगा C1H1। तो यहाँ n इक्वल टू 2 फिर आ गया, तो 2 बार n निकालने की जरूरत, इसलिए हम ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं कि दोबारा फिर डिवाइड करने की जरूरत न पड़े। तो 6 से करें, 6 से करें, तो ये हो गया C1H1, राइट, वेयर n इज इक्वल टू 6 एंड n इज आवर दैट फैक्टर, राइट। तो इस तरह से हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, दैट इज आवर एम्पिरिकल फार्मूला, दैट इज आवर मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, तो लेट्स स्टार्ट one more topic, determination of empirical formula of a compound. How to determine empirical formula of a compound if percentage of components are given, right? Okay. How to calculate empirical formula or molecular formula? Now, determination of empirical formula of a compound. Empirical formula of a compound. First step is write the percentage of elements. Percentage of element, right? फर्स्ट स्टेप, ये मैं भी बता रहा हूं, फिर इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी बताता हूं मैं। राइट द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, आप मेरे साथ लिख सकते हो इसे। राइट द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स एंड सेकेंड थिंग इज नंबर ऑफ मोल। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट
डिवाइडेड बाय, तो इस तरह से नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर सकते हैं, डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास, राइट। थर्ड स्टेप, first step is percentage of element, second step is number of moles we have to calculate, third one is divide moles of element by smallest among them, divide moles of elements by, ये moles जो calculate होगा, moles of elements by smallest number, smallest नंबर, ये स्मॉलेस्ट नंबर किस चीज का होगा, among them to find atomic mass ratio, among them to find, अब क्या फाइंड करना है, एटॉमिक मास रेशियो और मॉलिक्यूलर मास रेशियो, टू फाइंड एटॉमिक मास रेशियो और मॉलिक्यूलर मास रेशियो। पहले आप इन स्टेप्स को लिख लीजिए, फिर मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा, आप समझ जाएंगे, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। फोर्थ पॉइंट इज रेज द एटॉमिक और मोलर रेशियो ऑफ एलिमेंट टू इट्स नियरेस्ट होल नंबर। नाउ अब हमें क्या करना है, रेज करना, इसे इंक्रीज कर देना, अगर मेरा फ्रैक्शन में आता है तो इंक्रीज कर देना ताकि वो एक होल नंबर आ जाए। रेज द एटॉमिक और मोलर रेशियो, एटॉमिक और मोलर रेशियो रेज करना है, कब तक रेज करना है, ऑफ एलिमेंट्स टू द नियरेस्ट होल नंबर, टू द नियरेस्ट होल नंबर। मैं अब डिटेल में समझाता हूँ ये चीजें क्या है। अभी जैसे पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए, लास्ट स्टेप एंड फिफ्थ स्टेप, राइट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। पहले इसे आप लिख लीजिए, एक मिनट का टाइम लीजिए, इसे लिखिए, फिर मैं आपको एक न्यूमेरिकल बताता हूं ताकि ये क्लियर हो जाए। ओके, तो हम पहले उस न्यूमेरिकल पे चलते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, अ कंपाउंड ऑन एनालिसिस वाज फाउंड टू कंटेन, एक कंपाउंड है वो क्या क्या कंटेन किए हुए बता रहा हूं मैं। कार्बन है उसके पास 34.6%, कार्बन इज 34.6%, एंड हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन 3.85%, 3.85%, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 61.55। तो ये परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, mass percent of carbon, hydrogen, oxygen is given, and you have to calculate molecular formula for the same. Now, how to determine the empirical formula, or that is molecular formula or empirical formula, whatever. So first of all we have to calculate empirical formula, then we will convert in molecular formula. Percentage of mass, percentage of component is given. How to calculate mass percent हम already discuss कर चुके हैं। ओके, तो ये बनाने के लिए मैं एक टेबल बनाता हूं, इस टेबल को ध्यान से देखिए। फर्स्ट कॉलम इज एलिमेंट, राइट, वी हैव कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एलिमेंट्स आर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देन percentage of carbon is 34.6% is given. For hydrogen it's 3.85%. For oxygen it's 61.55%. Now
Third column is atomic mass. Atomic mass of carbon is 12, atomic mass of hydrogen is 1, oxygen is 16. Right? Next one is mole. How to calculate moles? How to calculate mole? As we discussed earlier, percentage of element divided by its atomic mass. Percentage of element divided by its atomic mass. It means 34.6 divided by 12. Here 3.85 divided by 1. Here 61.55 divided by 16. 6 divided by 16. So 34.6 divided by 12, it will be 2.88. That is 3.85. And 61.55 divided by 16 is equal to 3.85. That is 2.85. The same will be 2.85. 3.85 and that is 3.85. Okay. 2.88, 3.85, 3. Now, मैंने क्या बोला कि अपना अगला स्टेप क्या था? Divide moles of element by smallest among them. तो इन तीनों में जो सबसे छोटा होगा, उससे हम डिवाइड करेंगे, राइट? उससे हम इस मोल्स को डिवाइड कर देंगे. तो इनमें 2.88, 3.85, 3.85. सबसे छोटा 2.88 है, तो मैं 2.88 से इन तीनों डिजिट को डिवाइड कर दे रहा हूं ताकि मैं एक होल नंबर की तरफ बढ़ पाऊं. तो नेक्स्ट जो मेरा वो एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे एटॉमिक या मॉलिक्यूलर रेशियो होगा. ऐसे मैं क्लियरली लिख रहा हूं, एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट कर रहा हूं. तो ये हो गया 2.88 डिवाइडेड बाय 2.88. इन तीनों में याद रखिए, इन तीनों में जो सबसे कम वैल्यू आएगी उससे हम तीनों को डिवाइड करेंगे. 2.88 इज लीस्ट काउंट, दैट इज 1. 3.85 डिवाइडेड बाय 2.88. ओके, 3.85 divided by 2.88. Right? It became 1.337. 1.337. तो ये जो मेरा नंबर आया, that number, it is not a whole number. Now we have to convert it in whole number. तो 0.337. 0.337, if we multiply 3 with 0.33, then it became 1. Now, for the same, if you multiply the whole term by 3, 3 से हम तीनों में मल्टीप्लाई कर रहे हैं. क्यों 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये एक होल नंबर आ जाएगा. मिनिमम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक होल नंबर आ जाएगा. 0.33 है, 3 टाइम्स अगर करेंगे तो ये कंप्लीट 1 डिजिट बन जाएगा. तो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 से तीनों को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ. तो ये आ जाएगा मेरा 3, ये आ जाएगा 4. 1.337 इंटू 3 4 आ जाएगा. ये 1.337 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 4. राइट? तो ये टेबल है मेरा. इस तरह से कैलकुलेट करेंगे एलिमेंट, percentage of element, atomic mass of element. First is number of mole calculate करना. How to calculate number of mole? Percentage of element divided by its atomic mass. That is 2.88, 3.85, 3.85. Now, अब इन तीनों में जो सबसे छोटा डिजिट मेरा आ रहा है उससे मैं तीनों को डिवाइड करता हूँ. तो सबसे छोटा 2.88 है, मैंने इस तीनों को डिवाइड कर दिया. राइट? तो यहाँ मेरा 1.337 आया. यहाँ पे एक होल नंबर आया. हमें तो होल नंबर ही चाहिए, तो मैं इसे ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि ये होल नंबर आ जाए. तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया. नाउ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये these are the 3 components of this element. Right? Carbon, amount of carbon atom is 3.
What about hydrogen? 4. What about oxygen? 4. That is our molecular formula. That is our molecular formula or empirical formula. Right? तो ये steps determination of empirical formula of a compound. Answer is C3H4O4. एक बहुत सिंपल क्वेश्चन देता हूं ताकि ये जो मल्टीप्लाई करने वाला है ये टर्म तो आप समझ गए, ये रेयर केस है. आपको जो सिंपल आएगा वो मैं देता हूं. पहले ये टेबल मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं और क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं. ये मेरा एटॉमिक रेशियो है और लास्ट वन में सिंपल होल नंबर यहां पर हम देखते हैं. सिंपल होल नंबर. राइट. अब मैं यहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को चेंज कर देता हूं. अपना नया क्वेश्चन आ जाएगा. कैलकुलेट द calculation of simplest whole number ratio of elements where silicon is 20.8%. Silicon is 20.8% and chlorine is 79.2. देखिए ये कैलकुलेशन बहुत ही आसान है. तो what to do? First of all, we have to write elements. Elements are silicon and chlorine. Now percentage of element given to 20.8% and it is 79.2%. Atomic mass of silicon. अगर ये ऐसा क्वेश्चन होगा तो आपको एटॉमिक मास गिवन रहेगा. एटॉमिक मास ऑफ सिलिकॉन इज 28. that is 35.5. Our next is number of mole. How to calculate number of mole? इस परसेंटेज को मैं एटॉमिक मास से डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट हो जाएगा. इट मींस 20.8 डिवाइडेड बाय 28. राइट. नाउ 79.2 divided by 35.5. Okay. Now 79.2 divided by 35.2, that is equal to 0.74 and that is equal to 2.33. Now एटॉमिक मास रेशियो और मोलर मास रेशियो. अब क्या करना है, इन दोनों में जो मुझे सबसे स्मॉलेस्ट दिखता है उससे मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा. स्मॉलेस्ट इज 0.74. नाउ 0.74 डिवाइडेड बाय 0.74. हियर 2.33 डिवाइडेड बाय 0.74. राइट. दैट इज इक्वल टू 1 एंड दैट इज इक्वल टू 3. ये 1 आ गया, ये 3 आ गया. अब कितना आसान है ये. नाउ empirical formula SiCl. Components are Si and Cl. Silicon and chlorine. Silicon atom is 1. For chlorine atom is 3. It is our formula. तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का. थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे. कल हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे.